پھر اس کتاب کے بارے میں کبھی شک نہ کرنا، یہ کتاب تمہارے لیے بہترین رہنما ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو نا کہ جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا اس کے بارے میں، تو چلو آؤ ایک تجربہ کر لو۔ بات محض دعوے کی نہیں ہے، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ محض دعوے نہیں ہیں۔ دنیا دعووں پہ ہی چل رہی ہے، دلیلیں غائب ہیں، تجربے غائب ہیں، سائنٹیفک حقائق غائب ہیں۔ قرآن سب سے بڑی سائنٹیفک حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے، سب سے بڑا تجربہ ہمارے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو اگر تم کہتے ہو یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے اور نازل نہیں ہوئی ہے تو ایک صورت اس کی جیسی بنا کے لا دو، چلو ایک صورت لے آؤ، عربی جانتے ہو لے آؤ، فصاحت و بلاغت جانتے ہو لے آؤ، شاعر تمہارے اندر ہیں لے آؤ، ادیب بھی ہیں لے آؤ، اور جتنوں کو چاہو اپنے ساتھ ملا لو، کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جتنے گواہ ہیں، جتنے مددگار ہیں، جتنے فصاح، جتنے بلاغا لے کر آ جاؤ اور ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ ایک صورت کا مطلب ہے 3 چھوٹی آیتیں، 3 جملے نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر، ہے کوئی آج تک دنیا کی ایسی کتاب جو یہ چیلنج کرے، کوئی اتنی جرات کرے اور اتنا بڑا چیلنج دے؟ نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی، دوسرے دن گھر پہنچ جائے گی، ہزاروں لاکھوں نکل آئیں گے چیلنج قبول کرنے والے، لیکن قربان جائیں اللہ کی اس کتاب کے 1500 سال ہو گیا آج تک کسی نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا ہے۔ 3 جملے نہیں بنا سکی دنیا، ایٹم بم بنا لیا، 3 جملے نہیں بنا سکی، بڑی بڑی چیزیں بنا دی، اللہ کی کتاب کا جواب نہیں دے سکے۔ یہ ہے وہ قرآن جو اس حقیقت کے اوپر کھڑا ہے۔ اور کیسے جواب لائیں گے؟ وہ امی ذات جس نے کسی مکتب مدرسے اسکول وغیرہ میں کہیں سے نہ پڑھا اور پھر سارے اہل عرب کے بیچ کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کی کتاب کے بھروسے پر لاؤ میرا جواب۔ یہ دوسرا معجزہ ہوا، ایک معجزہ قرآن ہوا تو دوسرا معجزہ امی لقب رسول اللہ کی ذات ہو گئے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کوئی اگر کہیں سے پڑھ لکھ کر آ جاتا اور قرآن اس پہ نازل ہو جاتا تو پھر یہ بات ہوتی کہ صاحب پڑھے لکھے ہیں، کہیں سے پڑھ کر آ گئے ہیں اس لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسی ذات کو منتخب کیا، نہ دنیا میں کسی کو استاد بنایا، نہ کوئی مدرسہ دکھایا، نہ کوئی مکتب دکھایا۔ امی ذات جیسے پیدا ہوئے ویسے ان کے درمیان جوان ہوئے، نہ کسی سے شاعری سیکھی نہ ادیب سے بنے، بلکہ جب زبان کھولی تو قرآن جاری ہو گیا۔ ایسا قرآن جاری ہوا کہ اعلی حضرت نے کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ جو ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے، پیغمبر اسلام نے ان بولنے والوں کو اپنے سامنے گونگا کر دیا۔ ان کی فصاحتیں گنگ ہو گئیں، ان کی شاعری گم ہو گئی، اور وہ ایسے دبے لچے بیٹھ کے سنتے تھے کہ جواب نہیں بنتا تھا۔ اور اسی وجہ سے وہ حیران تھے کہ اس امی لقب ذات کی زبان سے یہ کیسا کلام جاری ہوا۔ یہی اللہ کے معجزے ہیں، یہی اس کی قدرت ہے کہ اس نے اپنی جناب سے اپنے حبیب کو ایسا پڑھایا، ایسا پڑھایا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھائیں گے کبھی بھولو گے نہیں، دنیا کو حیران کر دو گے۔ یہ قرآن نازل ہوا اس شان سے، چیلنج ہے، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی، اس کے معنی کا جواب نہیں، اس کی آیتوں کا جواب نہیں، اس کی باتوں کا، اس کی حقائق کا جواب نہیں ہے۔ جو حقائق قرآن نے بیان کیے تھے آج سے 1500 سال پہلے، آج تک کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ جو تاریخ بیان کر دی ہے سابقہ قوموں کی، لفظ بلفظ صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پوری تاریخ آ رہی ہے بنی اسرائیل کی، جتنی ہمارے لیے ضروری ہے وہ سب بیان فرما دی کہ تم سے پہلے لوگوں نے دیکھو کس کس طرح معاملات کیے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اور پھر وہ حقائق جس میں آج تک دنیا غلطوں پیچا کہ انسان کہاں سے آیا، کیوں کر بنا، پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا۔ اللہ نے چند کلمات حقائق پر مبنی وہ بیان فرما دیے کہ انسان کی ابتدا پتہ چل گئی، ساری حقیقت سامنے آ گئی، اور انسان اب ثابت کرتا رہے گا۔ اینتھروپولوجی کا ماہر وہ آج تک لگا ہے اس بات میں کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اللہ فرماتا ہم بتاتے ہیں ایسے ہوئی۔ آج کی آیتوں میں آپ نے یہ بات سنی، اللہ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انسان سنگل سیلف سے بنا ہے، یہ کوئی معاشرتی قسم کا معاملہ نہیں تھا، اجتماعی معاملہ نہیں تھا، ایک ذات تھی، اس کا نام تھا آدم علیہ السلام۔ آج پتہ نہیں کیا کیا
कौन कौन से इंसान साबित हो रहे हैं? दुमों वाले इंसान, बगैर दुमों के इंसान, 4 टांगों वाले इंसान, 2 टांगों वाले इंसान, लंबे लंबे बालों वाले इंसान, पता नहीं कहाँ कहाँ खोए हुए हैं। जहालत की दुनिया साबित कर रहे हैं, अंधेरे दौर को साबित करने में लगे हैं, इंसान को पता नहीं क्या क्या बनाने में लगे हुए हैं। अरे अल्लाह की किताब कहती है इंसान बहुत मुकर्रम हस्ती है, हमने इसे अपने लिए अपना खलीफा बनाया है। क्या जानवरों से किसी को खलीफा बनाया जा सकता है? क्या किसी रजील और हकीर से किसी को इतना बड़ा मनसब दिया जा सकता है? हम कभी किसी को अपने लिए चुनेंगे तो बेहतरीन किस्म का इंसान चुनकर लाएंगे। अरब वाले भी जब गुलाम ढूंढते थे तो अरबी नस्ल का सफेद गुलाम तलाश करते थे, मुअज़्ज़ज़ गुलाम तलाश करते थे, ताकि उनकी वजाहत में इजाफा हो, उनकी नेक नामी में इजाफा। अल्लाह के लिए कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को इस तरह बनाया। अल्लाह ने फरमाया हमने तो इसे खलीफा बनाया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, और बनी आदम को हमने बुजुर्गी दी है और हमने इंसान को खिलाफत के साथ नवाजा और खलीफा बनाया आदम अलैहिस्सलाम को। और तुम कहते हो इंसान अंधेरों में भटकता रहा, अंधेरों में, जहालतों में, और इसकी इब्तिदा कुफ्र और शिर्क से हुई। अल्लाह फरमाता वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने तो पहले इंसान को इतना इल्म दिया था कि तुम सारे के सारे मिलकर भी उस इल्म का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम दरियाफ्त करते चले जाओ। आज साइंस की दुनिया उन्हीं हकाइक को दरियाफ्त कर रही है जिनका ताज, जिन हकाइक का ताज, जो हकाइक नगीने बनाकर एक ताज में लगाकर, जो वो ताज जिस हस्ती के सर पे लगा दिया गया था वही पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम था। अल्लाह फरमाता हमने तुम्हारा सारा इल्म उसके ताज के नगीनों में लगा दिया था, नगीनों की शक्ल में जड़ दिया था, और तुम अब दरियाफ्त करते रहो। अल्लाह ने फरमाया हमने सारे नामों का इल्म दे दिया था, सारी चीजों की खासियत बता दी थी, और सारा तुम्हारा इल्म आदम को दे दिया। फिर आदम ही से इल्म निकलता रहा। अब तहकीक हो रही है, दुनिया दरियाफ्त हो रही है। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला, और यहाँ पर ये नुक्ता भी सामने ले आइए, जब आदम के इल्म का ये आलम है तो शाह बनी आदम के इल्म का क्या आलम हुआ? आदम से तो अफजल है शाह बनी आदम, हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुझे कहने दीजिए कि फिर जब उनके इल्म की बात आई तो आदम का इल्म, हजरत आदम का इल्म हुजूर की कबाए इल्म के गोशे में आ जाता है। हुजूर का जो इल्म है वो सबसे ज़्यादा है। मगर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात यहाँ बता दी है ताकि इंसान अपने बारे में सही मालूमात से आगाह हो जाए। और देखिए फिर उसके बाद बहुत से हकाइक बयान हुए आज की आयतों में, और साथ में फिर ये भी बता दिया गया कि देखो हमारे नेक बंदों का मामला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, किस तरह उन्होंने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह का घर बनाया, वो सारे वाक़यात यहाँ बयान किए। और फिर यही घर जब बन गया तो फिर किस तरह अपने महबूब को उस घर की तरफ लौटाया। जब बैतुल मुक़द्दस की रुख करवाया 16-17 महीने तक, तो फिर किस तरह घुमाकर फिर उधर मोड़ दिया अपने इस घर की तरफ, खाने काबा की तरफ। और जिस शान से उनको इस घर की तरफ मोड़ा तो उसका जिक्र फरमाते हुए इरशाद हुआ फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, प्यारे हम तुझे उसी घर की तरफ मोड़ देंगे जिससे तुम राजी हो। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ये इंसान का मकाम तो देखो कि वो इंसान, एक इंसान की झलक दिखाई वहाँ आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने खिलाफत की बात फरमाई, फिर यहाँ लाके बता दिया इंसान तो वो इंसान है कि मैं रब और रहमान होकर इस इंसान की रज़ा पसंद करने लग जाता हूँ, इसकी ख्वाहिश पूरी करने लग जाता हूँ। किस तरह कि देखो जब काबा बना, काबा किबला बना, तो अल्लाह ने फरमाया प्यारे जिस काबे से आप राज़ी हो हम उसी को काबा बना देंगे, उसी को किबला बना देंगे। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, ये है मकाम इंसानियत का और इंसान का। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत आज की तिलावत के अंदर यहाँ पर आई। अल्लाह ने अपने हबीब को बड़ा मकाम अता फरमाया, इंसान को आपके सदक़े में मकाम अता फरमाया, और इसी सदक़े में हम मोमिनों को भी अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। हमें वो ईमान अता फरमाया है जो किसी को नहीं मिला। आज सारी दुनिया गुमराहियों में भटक रही है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे महबूब के साथ हैं उन्हीं का ईमान बरहक है और उन्हीं का ईमान जो है वो सच्चा है। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना, इसलिए कि हम अल्लाह पे ईमान लाए और जो नाजिल किया गया हमारी तरफ उस पे।
वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात, सारे नबियों पे ईमान लाए, सारे नबियों पे ईमान, सारी किताबों पे ईमान, सारे नबियों पे ईमान, सारे रसूलों पे ईमान, सारे फरिश्तों पे ईमान, हर चीज पे ईमान, जिस पे भी ईमान का तकाजा है उस पे ईमान लाए हैं। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, मूसा अलैहिस्सलाम को जो दिया गया उस पे ईमान, ईसा अलैहिस्सलाम को जो दिया गया उस पे ईमान। वमा ऊतिया नबिय्यूना मिन रब्बिहिम, और नबियों को, सारे नबियों को जो कुछ दिया गया हम सब उस पे ईमान रखते हैं। ये तासुब से पाक, वतनियत से पाक, रंग नस्ल से पाक, जोग्राफियाई हदबंदियों से पाक, जात पात से पाक, ये उन हकाइक पर है ये ईमान जो अल्लाह ने नाजिल किए है, असली ईमान, सच्चा ईमान। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, और हम इन नबियों के दरमियान ऐसा कोई फर्क नहीं करते कि इनको माना उनको ना माना, नहीं। मुसलमान बाअदब है, सारे नबियों पे ईमान रखने वाला है। यही पैगाम दुनिया को आज पहुंचना चाहिए, ताकि जो ये समझा जाता है कि मुसलमान तंग नजर है, मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुसलमान इंतहा पसंद है, गलत है ये बात। मुसलमान का ईमान इस किस्म की सारी तंगनाइयों की नफी करता है, इस किस्म की सारी गलत और बेहुदा बाउंड्रीज की नफी करता है। ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसी कोई इंतहा पसंदी नहीं है। ये सारी बाउंड्रीज उन्होंने खुद लोगों ने अपने अंदर खींची हुई हैं। उन्होंने जब पैगंबर इस्लाम का इनकार किया, उनसे नफरत की, उनके खिलाफ बात की, मजाक उड़ाया, तो दरअसल ये सब इंतहा पसंदी वहां पाई गई। मुसलमान तो हर पैगंबर पर यकीन रखता है, व नहनु लहू मुस्लिमून, इसलिए मन यकीन रखता है कि वो अल्लाह का मुसलमान है, अल्लाह की बात मानता है, जो उसके अल्लाह ने फरमाया है उस पर ईमान लाता है। फ़इन आमनू बिमिथली मा आमनतुम बिही, अल्लाह ने फरमाया अगर ये लोग इसी तरह ईमान लाएं जैसे कि तुम लोग ईमान लाए हुए हो, फ़क़द इह्तदौ, तो ये सब हिदायत पर आ जाएंगे। वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और अगर वो इस तरह ईमान नहीं लाते तो फिर ये तुमसे दूर हैं, तुम्हारे इनके दरमियान फर्क है, वो अलग हैं, तुम अलग हो। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, तुम अपने ईमान पे कायम रहो, अल्लाह काफी है, वो देख रहा है, वो काफिरों के दाव पेच सारे चलने नहीं देगा। हमारी कमजोरियों के नतीजे में कुछ दाव चलेंगे, कुछ गलबे मिलेंगे, कुछ तसल्लुत जमेंगे, कुछ साजिशें कामयाबी से हमकिनार होंगी, मगर अल्लाह फरमाता अल्लाह इनको काफी है। ऐसा कोई दाव नहीं चल सकता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के मानने वाले मिटा दिए जाएं, ऐसा कोई दाव नहीं चलेगा, ऐसी कोई साजिश नहीं चलेगी। ये उम्मत फिर उठेगी, वह समीउल अलीम, इसलिए कि वो सुनने वाला सुन रहा है और जानने वाला जानता है। ये आज किसने उठाया हजारों लाखों करोड़ों लोगों को घरों से, किसने निकाला और मस्जिदों में पहुंचा दिया, किसने फिर अल्लाह की किताब के आगे झुका दिया, किसने फिर अल्लाह के हुजूर खड़ा कर दिया। इस मादियत में, इन गफलतों में, इन साजिशों के माहौल में मुसलमान फिर जिंदा हो जाता है। क्या ये झलक हमें नजर नहीं आ रही ईमान की? क्या ये गवाहियां नहीं हैं? क्या ये हमारे मुस्तकबिल की निशानियां नहीं हैं कि वो मुस्तकबिल कभी न कभी फिर तुलू होने वाला है? अल्लाह ने वो रमक अभी रखी हुई है। वो फरमाता सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग कहीं और है ही नहीं। अल्लाह का रंग अगर है तो इसी महबूब की गुलामी में है, इसी इस्लाम में है, इसी कुरान में है, इन्हीं मस्जिदों में है, इसी दीन में है, इसी रमजान में है। जब अल्लाह का रंग ये है तो अल्लाह अपने रंग को मिटने नहीं देगा, ये रंग मिटेगा नहीं। सिबगत अल्लाह, ये अल्लाह का रंग है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के रंग से अच्छा किसका रंग हो सकता है? मंदिर जितने चाहे बन जाएं, गिरजे जितने चाहे बन जाएं, जितने चाहे मज़ाहिब फैल जाएं, अल्लाह का रंग तो इन्हीं मस्जिदों में ही मिलेगा, अल्लाह का रंग तो मुसलमान के अंदर ही मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया यही रंग मुझे पसंद है, तो वो अपने रंग को मिटने नहीं देगा। इस रंग पे कुछ गर्द गुबार हमारी वजह से तारी हुआ है, ये रंग जिस दिन अपनी असल शान से जाहिर होगा फिर सब पे छा जाएगा। ये है इस कुरान का पैगाम। ये कुरान मिटने के लिए नहीं आया, ये कुरान तो हमें कायम रखने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए और अपने मानने वालों की हिफाजत के लिए। लिहाजा दोस्तों, इसकी तालीमात पे भी अमल करो और इस रंग को और गहरा करो जो आज की आयतों ने हम पे चढ़ाया है, इस रंग को और गहरा करो। अल्लाह करे यही रंग कायम रहे, दुनिया में भी कायम रहे, और मरने के बाद जब उठें तो इसी रंग के लोग अलग कर दिए जाएंगे और उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यही रंग वहाँ चलेगा और यही रंग यहाँ चलेगा। अल्लाह इस रंग में हमें डिबो कर रखे और हमें इस दीन और ईमान पे इस्तिकामत अता फरमाए। जो कुछ आज सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।